So we have 38 participants as of now. Shall we wait for 5 more minutes? We shall start, Abhishek, on the time. No worries. You Okay. can start. Okay, so good evening to one and all. Firstly, thank you for attending this webinar on interesting session on scope of CAs in the banking industry and use of artificial intelligence in digital lending. As per my knowledge, I guess till yet no such session has happened in Surat, and this is the first session of its kind. So today we have two young dynamic CAs, Mr. Sudhanshu Dikshit and Mr. Chirag Kalpada. Mr. Sudhanshu Dikshit is Area Credit Manager working in Kotak Mahindra Bank and heading portfolio of more than 2000 crores and heading Surat and Vapi credit location. He has been working with Kotak Mahindra Bank since 6 to 7 years, past banking in Kotak. He was in SBI, debt syndication and investment banking as in IndusInd Bank as credit manager. Mr. Chirag Kalpada, he is basically from Rajkot and he has joined ICICI Bank in 2014 as credit manager mortgage. Now he is currently zonal credit manager for all the retail assets, including home loan, mortgage loan, personal loan, business loan, education loan, etc. for Surat location. Before winding up the introduction session, I would like to sail this voyage and I would like to thank Mr. Abhishek Mittal, who has arranged this session for us. Also, I would like him to share the objective for keeping such session, which is out of the box and has never happened in Surat. Over to you, Abhishek sir, please. Thank you, Surya. Thank you very much. You have been great support throughout this event. And I thank very two young and very dynamic speakers of today, Sudhanshu Dikshit and Chirag Khalpada, who have been very grateful enough to give their consent for this program and for all of us. As soon as I informed them, gave them the objective of this program, they readily agreed and they decided to do this topic for us in such a busy session when most of the banks are very much busy in the sanction and disbursement of the loans, जहाँ पे client के हाथ और इनकी गर्दन एकदम नजदीक होती है. So thank you Chirag bhai and thank you Sudhanshu very much for accepting the invitation and for keeping such a wonderful topic where we would inform all of our CA members, ICA members, that how we could grow as a profession, as a professional in the banking industries and what are the other opportunities available in banking industry apart from the credit management relationship. What are the scopes available in internal audit? What are the scopes available in just hold for a second, just hold for a second. Yes. So what are the scopes available further in the banking industries? The objective of keeping today's program is very much clear that one, this program has never been organized in such a format as before by anyone. Secondly, when we see that today's banking industry is one of the most backbone of the economy of the Indian economy, where everyone is looking for multiple financing options available. So I think this is one of the most sought after industries. This is one which we cannot do without as a CA professionals, as a business. So I wanted the two dynamic speakers to share their experience, share the journey, share the opportunities available today in banking industries and how ICI as a profession and professional can help actually the nation in the partner building or help the banking industry in such a manner that हम बैंकिंग इंडस्ट्री को तो ग्रो करें ही करें, साथ साथ में एज अ प्रोफेशन कैसे ग्रो हो सकते हैं. तो मैं सुधांशु से बात कर तो ही सेड मी कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल दैट एज अ सीए वी डू नॉट नो अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग. जब हम 6-7 साल काम कर लेते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि बैंक यही अपॉर्चुनिटीज हैं. सेकेंडली, हमें बैंकिंग में मूव कैसे करना है, हमें बैंक टू बैंक हॉप करना है या बैंक टू बैंक हमें डाइवर्स वर्टिकल्स में काम करना है. मतलब अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज दैट हाउ एज अ सीए grow in the banking industry and apart from the credit manager or relationship manager or zonal head
what are the other opportunities available, how we as a CA profession can grow together. So I thank, I know Sudhanshu from 7 years, 2013, 2014. We do not have a working relationship, but I know he has a backbone of the Kotak Bank lying at Gurdo Road, and I have been knowing Chirag Bhai since last 1 year, and I have heard a lot about him from one of my friend who is working in ICICI very profoundly. So I thank both of them, and I would now request Sudhanshu to share his views and journey and share about his topic. Sudhanshu, over to you. Thank you, Abhishek, for introducing us. Okay, it has been a sheer pleasure for us to giving us such an opportunity to address all the bankers and reputed CA of the Surat. So it will be a sheer pleasure to discussing about the digital lending and giving us this good platform, right? So I think starting with the session, I could see some very happy faces from the banking industry. Month end खत्म हुआ है, तो खुशी दिख रही है. मंथ एंड क्या है बैंकर्स के लिए, इट इज वेरी मच इक्वल टू अ वर्ल्ड वॉर. दोनों तरफ धमाके होते हैं. So starting with the session, I'll be starting with the digital lending. ठीक है, most probably तो सबको पता ही है what is digital lending. So starting with the basics, I'll be covering what is digital lending, फिर क्या क्या टाइप्स के डिजिटल लैंडिंग अभी आ रहे हैं मोर ऑफन. जैसे हमने देखा है कि नॉर्मल डिजिटल लैंडिंग जो है कि बेसिकली पर्सनल लोन है, ये सब मतलब उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो देयर आर सम अदर वेराइटीज कि इस तरीके से भी डिजिटल लैंडिंग हो रहा है और उसके सामने और भी होगा. उसके बाद कि हाउ डज दिस डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म मेक प्रॉफिट्स, लाइक एनबीएफसी कैसे प्रॉफिट करिए डिजिटल लैंडिंग में. फॉर एग्जांपल हमें शायद 0% लोन पे बजाज फाइनेंस से लोन मिलता है एंड वी वंडर कि वो कमाते कैसे होंगे. should be catering that portion. दूसरा, हाउ आर दे श्योर कि हमको मिले बिना वो हमको डिजिटल में लोन दे रहे हैं, एंड हाउ आर दे श्योर कि वो रिकवर कर देंगे. उस चीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स रियली वेल. So we will be discussing on that points. So starting with the digital lending, basically digital lending क्या है? Digital lending is basically a form of lending money without visiting a bank and without major paper documents. Right. And what is the purpose of digital lending is कि digital lending basically cater करता है small businessmen को और salaried individuals को. Right. स्मॉल बिजनेसमैन बेसिकली ऐसा है कि शायद फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट एग्जांपल लूँ तो जैसे कोल हाइक का सबको पता ही होगा कि चाइना में सडन कोल का प्राइसेस शूट अप हो गए थे ऑलमोस्ट 4 to 5 times. राइट. तो डाइंग मिल्स अप्रोच्ड बैंकर्स, तो उन्होंने पास ऑन किया चार्जेस तो हमारे होलसेलर्स को, होलसेलर फर्दर रिटेलर्स को. तो होलसेलर और डाइंग मिल ने तो चलो अपने बैंक्स के साथ था तो उन्होंने दे आस्क्ड फॉर एडॉक लिमिट्स और सम टेम्परेरी लिमिट उनको मिल गया. पर रिटेलर क्या करेगा? सो फॉर रिटेलर्स दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि डिजिटल लैंडिंग उनको विद इन फास्ट फ्यू अपॉर्चुनिटी जो है, फॉर एग्जांपल दिवाली का सीजन आ रहा है एंड रिटेलर्स आर स्टक विद ऑर्डर्स, पर उनके पास फंड्स का शॉर्टेज है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ चुके हैं, तब डिजिटल लैंडिंग काम आता है. तो डिजिटल लैंडिंग ने इस मंथ में बहुत शूटअप किया है उनका बिजनेस, क्योंकि उनको आई थिंक रिटेलर को 7 दिन में दे फंडेड देम. सो डिजिटल लैंडिंग इसी रीजन से डिजिटल लैंडिंग ग्रो हो रहा है और बहुत आगे तक ग्रो होएगा डिजिटल लैंडिंग. तो बेसिकली डिजिटल लैंडिंग है कि हम शायद आज से 10 to 15 ईयर्स पहले हम कहीं मार्केट में दुकान देखते थे कि यहाँ पे ब्याज पे पैसा मिलता है. दे हैव गॉन ऑनलाइन एंड दे हैव गॉन कॉर्पोरेट बेसिकली. जैसे कि पहले ऐसा था कि ना गोल्ड के सामने लोन मिलता है तो उनको मुथूट ने कैप्चर कर लिया, वन अप ने कैप्चर कर लिया, वो दुकानें बंद हो चुकी है. वैसे ही अब जो लाला थे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ रहे हैं एंड दे आर बेसिकली गोइंग एज अ डिजिटल लैंडिंग. ऑल्सो विल टॉक अबाउट कि डिजिटल लैंडिंग का जो मार्केट है, आई थिंक 2000 आई जस्ट वेंट थ्रू सम सर्वेज. तो 2019 में डिजिटल मार्केट का जो लेंडिंग पोर्टफोलियो दैट वाज अराउंड 11,000 crores and within 3 years it has crossed about 35,000 crores, and I think next three years में it will be growing in the multiples. मतलब expected जो है by 2023 or 2024 it is expected to go beyond 1 lakh crores. And to support that data, Facebook and I think Xiaomi both already have told that they will be infusing around 1 lakh crores in the Indian market. And the basic reason why they are looking at the Indian market is the mass consumption. इंडियन मार्केट में आप कुछ भी बेचोगे ना, हर आदमी के लिए एक बायर है. तो सेम वे अगर डिजिटल में लोन है उसके लिए एवरी इंडियन, मतलब इंडिया में 135 करोड़ का कंजम्पशन है, 135 करोड़ का पॉपुलेशन को उसमें से अगर 2 करोड़ भी लोन लेते हैं तो दे कैन इजीली कंज्यूम 1 लाख करोड़. सो इंडिया का मार्केट और बहुत बड़ा, तो डिजिटल लैंडिंग जो है दैट विल बी फर्दर
be growing in the coming time. So digital lending में बहुत opportunities भी है और digital lending will grow in multiple folds. So then further we'll now discuss with digital lending में किस तरीके से digital lending होता है. जैसे मैंने पहले बताया कि everybody knows about online lending. For example, पर्सनल लोन्स है, राइट, पर्सनल लोन्स है या क्रेडिट कार्ड का लोन्स है, दीज आर ऑल कमिंग अंडर ऑनलाइन लेंडिंग, जिसको हम बेसिकली जानते हैं कि डिजिटल लेंडिंग. इसमें शायद बहुत सारी कंपनी जैसे लेंडिंग कार्ड्स है, पाइन लैब्स है, पॉलिसी बाजार है, पेटीएम है, एंड दे आर फंडिंग एट द रेट ऑफ अराउंड 15 to 24%, राइट. उसके अलावा एक जो लेंडिंग जो अभी रिसेंटली में ना इट हैज बीन ग्रोइंग, जैसे अगर किसी ने नाम सुना हो तो 12% क्लब है, दैट इज काइंड ऑफ पीयर टू पीयर लेंडिंग. फॉर एग्जांपल, आई एम हाँ, तो बेसिकली द थिंग इज पीयर टू पीयर लेंडिंग अभी बहुत वाइबिलिटी पे चल रहा है कि फॉर एग्जांपल आई एम अ इन्वेस्टर और मुझे किसी को अगर पैसा देना है, राइट, देयर विल बी अ मीडिएटर. तो जो मीडिएटर है दैट विल लेंड टू समवन, दैट इज बेसिकली पीयर टू पीयर लेंडिंग. ही कैन चार्ज हिज कमीशन, ही कैन टेक हिज इंटरेस्ट इन बिटवीन. जैसे कि 12 AM क्लब है एंड दैट इज पावर्ड बाय भारत पे एंड पेटीएम इज आल्सो नो गोइंग एंड दे आर आइंग अ बिजनेस ऑफ अराउंड 15,000 crores in 2 to 3 years. उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा है दैट इज सप्लाई चेन लेंडर्स, जिसके अंदर हम सेल्स बिल डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, हम परचेज बिल डिस्काउंटिंग कर रहे हैं. इसका बहुत एग्जांपल है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई यार्न ट्रेडर है, यार्न मैन्युफैक्चरर है, एंड ही परचेजेस बिल, he purchases raw material from Reliance and he is selling to the local weavers in Surat, right? So he will generate his bills on the live platform. और हम जैसे हमको जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, जो इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स है, अगर उसको इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल उसने कोई 50 लाख का बिल डाला, ठीक है, अब नाउ ऑल टुगेदर किसी को 1 लाख करना है, किसी को 50,000 करना है, इस तरीके से हम लोग उसको डिस्काउंट करके वी कैन पे हिम एंड देन एज ही रिसीव्स द मनी, और वो बेसिकली जो पेमेंट आता है वो आता है जो मीडिएटर है उसके एस्क्रो अकाउंट में एंड देन ही पेज अस पोस्ट हिज कमीशन और इंटरेस्ट. तो ये अपार्ट फ्रॉम जैसे मैंने बताया पर्सनल लोन तो सबने सुना होगा शायद, उसके अलावा सप्लाई चेन और P2 प्लेटफॉर्म जो है बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, राइट. So I think these all things will be supporting to targeting this digital lending platform to reach around 2 lakh crores in around 3 to 4 years. और I think और बहुत प्लेटफॉर्म्स ऐसे आएंगे very soon to support all this, right. अभी उसके apart from this, now we'll discuss about how do they make profits. For example, इसका मैं अगर लाइव एग्जांपल दूं तो हमने सबने सुना होगा कि हम when we purchase some phones on Amazon या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर हम परचेस करते हैं अमेजोन से, तो क्रेडिट कार्ड हमको ऑफर करता है कभी कभार 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट. और दूसरा क्रेडिट कार्ड में भी अगर हम यूज लिमिट्स फॉर 45 days, तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे ऑन एन एवरेज देयर इज एन एवरेज कंज्यूमर का जो बिल है क्रेडिट कार्ड का, जो एवरेज परचेसिंग पावर है दैट इज 10,000 rupees at any point of time. So basically company lends around 10,000 rupees at any point of time at a 0% rate of interest, right? But how do they charge? They charge you 500 rupees as a joining fees or card renewal fees. So basically 5% तो वहाँ रिकवर हो गया, right? उसके अलावा basically there is a trend कि हर क्रेडिट कार्ड जिस आदमी ने लिया है ना, he cannot pay, मतलब क्रेडिट कार्ड कभी जिंदगी में बंद नहीं होता है, एंड क्रेडिट कार्ड में every 1% बाई मिस्टेक ही सही ही बाउंस का चार्ज होता है, एक कार्ड का 1 बाउंस का चार्ज होता है 1,000 rupees. And additional he charges you 3% penal interest starting from the date of purchase. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1,000 वहां पे और penal interest 3% के हिसाब से 2 महीने का 6% एंड 10,000 पे 1% हुआ 10%. तो बेसिकली अगर मैं ये तीनों को ऐड करता हूँ तो दैट कम्स टू अराउंड 21%. तो 21% तो इनको यहाँ पे इनकम है. उसके अपार्ट फ्रॉम दैट दे चार्जेस कमीशन फ्रॉम देयर वेंडर्स. अगर आप कोई चीज अमेजोन से परचेस करें तो अमेजोन ऑलरेडी उस कार्ड पे उसको कमीशन देगा 10%. एंड ये कुल मिला के हमारा आता है 20 to 30% रिटर्न. और उसके सामने देयर इज सम लॉट ऑफ डिफॉल्ट्स, उसके अंदर 10% करता है. स्टिल द कंपनीज आर मेकिंग 20% बाय शोइंग दैट दे आर ऑफरिंग यू लोन्स एट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो बेसिकली इनका जो बहुत मेजर जो इनकम है दैट इज फ्रॉम पीनल चार्जेस and bounce charges and taking commission from the vendors. So these are the basically their income criteria. वो ultimately consumer पे आता है
if you know you buy from Croma, they'll ultimately charge you somewhere or other way, तो वो उन्हीं को चार्ज कर लेता है, राइट। तो इस तरीके से सेम वे में डिजिटल लेंडिंग भी इसी तरीके से कुछ चार्ज का, जितना छोटे अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर मान लो 10,000 20,000 की जो स्मॉल लेंडिंग कर रही है, बहुत कंपनी जो माइक्रो फाइनेंसिंग में है उनका आई थिंक 500 रुपीज तो ये चार्ज होता है। इट लुक्स लाइक कि 10,000 पे मैं 500 रुपये भर रहा हूँ, बट इट इज मोर ऑफ लाइक 5%। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो दे आर अर्निंग अराउंड 20 to 30% ऑफ रिटर्न्स, एंड हमारा आई थिंक एज ऑन डेट अगर हमारा हम लेंडिंग रेट पकड़े तो इट इज less than 9% on an average. क्योंकि एज ए इन्वेस्टर जो है he can either invest in capital markets or he can invest in real estate market. Real estate market is not working very good and capital market is already at high and all over the world. So जितने भी FDI है, foreign direct investment, they are diverting to India just considering कि India has a mass consumption. So they are basically investing in India because India needs funds और India में consumption बहुत है, हर चीज का consumption India में, right? Now, how are they? No, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो कंपनीज है जो डिजिटल लैंडिंग कर रही है, how are they sure on this customer? क्योंकि वो हमको मिल नहीं रहे, and still they are funding, they are offering us loans of 5 lakhs, they are offering us loans of 6 lakhs without documents. आपने ऐड देखे होंगे, बजाज के हर कंपनीज के ऐड देखे होंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल दूँ, आपका फोन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एवरी ऐप आस्क यू फॉर द परमिशन टू रीड देयर मैसेजेस, या आपकी जो भी एक्टिविटीज है वो ट्रैक करता है। उसका लाइव एग्जांपल है क्रेड ऐप। आई थिंक बहुत लोग शायद यूज करते होंगे फॉर पेइंग ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड्स, राइट। क्रेड ऐप बेसिकली आप जब यूज करते हो तो इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ इंसेंटिव, गिफ्ट्स वगैरह देता है, बट द मेन पर्पस ऑफ द कंपनी इज ट्रैकिंग योर डेटा। इट्स ऑल अबाउट डेटा। दे आर फंडिंग ऑन योर डेटा, दे आर नॉट फंडिंग ऑन यू। क्रेड बेसिकली आपका डेटा ट्रैक करता है कि आप किस तरीके से आप अपना क्रेडिट कार्ड पे ऑफ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल क्रेड ने आपने ऐप डाउनलोड की एंड यू आर यूजिंग दिस ऐप फॉर अराउंड 1 ईयर एंड यू आर क्रेड इज ऑफरिंग यू सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स और समथिंग। वो आपका एक डेटाबेस बना रहा है। अगर आप 12 महीने कंटिन्यूअस आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आप रेगुलर करते हो, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट से आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरे ईयरली पे किया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज, राइट, एंड आपने बहुत टाइमली पे किया, राइट। फॉर मी इट इज वेरी इजी टू जज कि जो बंदा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकता है 1 लाख का, वो इजीली मेरा 5 लाख का 5 साल की EMI में ही कैन पे, राइट। सो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कुछ आपको कुछ और देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आपको काम कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर एग्जाम्पल, और जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं डिजिटल लैंडिंग के, कि जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नोज एवरीथिंग अबाउट यू, कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ घूमने जाते हो। अगर आप कोई न्यूजीलैंड का टूर बुक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेन का स्विट्जरलैंड का टूर बुक कर रहे हो, तो व्हाट्सएप नोज कि आपने आपके जो नोटिफिकेशन आते हैं दे ट्रैक्स दैट कि आपको उनको पता है कि आपने 5 लाख रुपए का पैकेज दिया, 5 लाख रुपए खर्चा किया है। फॉर मी इट इज वेरी इजी टू जज कि जो बंदा अगर स्विट्जरलैंड घूम सकता है, मैं उसको 5 लाख रुपए की लोन में वेरी इजी दे सकता हूँ, अनसिक्योर्ड लोन, right? So basically artificial intelligence is tracking you everywhere. So basically you have been funded on your data and not you. बैंक्स पहले क्या हमको मिलती थी, हमसे हमारे से डेटा लेती थी, सब लेती। अब सबको पता है कि है ना, आप डेटा, मैं डेटा पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी भी तो ये इस कॉल में अराउंड 40 to 50 लोग हैं। आई थिंक एवरीबडी इज बैंकर एंड एवरीबडी यहाँ पे चार्टर्स है, बैंकर्स है, सब है। मैं यहाँ पे अपफ्रंट अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टर है तो मैं उसको आराम से बोल सकता हूँ कि 5 लाख रुपए की लोन बिंदास सबको ऑफर कर दो, क्योंकि कोई भी बैंकर या चार्टर्ड आज कहीं पे भी जाता है तो ही कैन इजीली गेट अ पैकेज ऑफ अराउंड 8 to 10 lakhs। और कोई चार्टर्ड, कोई बैंकर अपना सिविल खराब नहीं करेगा विद एन इंटेंट टू डू अ फ्रॉड। सो इट इज वेरी इजी फॉर मी। मैं यहाँ पे सिर्फ बैठे पॉलिसी बना सकता हूँ कि भाई मेरे को इनको मैं आराम से 5 लाख फंडिंग कर लो, खाली मुझे लेना क्या है, उनका KYC, मुझे एक सिविल निकालना है, जस्ट टू चेक देयर पास्ट ट्रैक, और उनका मेंबरशिप नंबर लेना है चार्टर्ड का, एंड आई नीड जस्ट 2 रेफरेंसेस, ताकि अगर कुछ हो तो मैं मतलब उनको पकड़ सकूं। बस एज सिंपल एज ये पॉलिसी बन गई एंड उसके बेस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म लैंडिंग कर रहा है। और अगर हम तो इसी तरीके से जो छोटे छोटे सेक्टर है, जैसे 5 लाख की लैंडिंग की यहाँ पे 47 पीपल है, तो आई कैन वेरी, अगर 5 लाख 47 से 20 लोग भी अगर ये अवेल करते हैं तो इट वुड बी अराउंड 1 crore, राइट। तो 1 crore का लैंडिंग हो गया मेरा एट द रेट ऑफ 12% एंड माई करंट IRR इज अराउंड 7 to 8% जो मुझे मार्केट से फंडिंग मिल रहा है। सो स्टिल आई एम
अर्निंग 4 to 5%, एंड एडिशनल जो एज आई ऑलरेडी सेड कि बाउंस चार्ज और पीनल चार्ज है वो इतने हैवी है, इट डजंट लुक हैवी पर वो बहुत हैवी होता है। अमाउंट आपको ऐसा लगेगा कि शायद 1000 रुपये चार्ज लगा रहता है, 1000 इज ऑलमोस्ट नो अराउंड 10%। अगर आप 10,000 दे रहे हो तो, अगर आप 5 लाख दे रहे हो तो बहुत हैवी अमाउंट है। तो बेसिकली दे आर अर्निंग इन मासेस, और ऐसा शायद हमारा इंटेंट नहीं हो, लेकिन तो भी बाउंस तो कभी कभार तो हो ही जाता है। शायद हम नेक्स्ट डे पढ़ते पर वो तो हमको चार्ज लगा देगा। सो इस तरीके से डिटेल लेंडिंग आर टारगेटिंग द सेक्टर्स। चार्टर्स के लिए आई थिंक एवरी बैंक इज फंडिंग की चार्टर्स हम फ्लैट 5 लाख दे रहे हैं। सेम वे डॉक्टर्स में भी है, सेम वे प्रोफेशनल्स को भी लोन मिल जाता है, सेम वे सैलरीड को मिलता है। सैलरीड इज सबसे सेफेस्ट सेगमेंट है सैलरीड, तो सैलरीड हमेशा डरा हुआ होता है, ही वोंट डिफॉल्ट। ये मतलब एट सबको पता है कि सैलरीड जो है इट वोंट डिफॉल्ट। तो नो, सो इसी तरीके से दे आर टारगेटिंग द सेगमेंट। और इसी तरीके से अब ऐसा हो गया कि ये ज्यादा माइक्रो फाइनेंस में इसलिए है कि माइक्रो फाइनेंस में जितना छोटा लोन ना उतनी ज्यादा इनकम, क्योंकि क्या है 10,000 के सामने 1,000 छोटा लगता है, पर इट इज ऑलमोस्ट 10%, राइट। सो आई थिंक अब तो ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्मिंग ऑलरेडी गिविंग फंड्स ऑन परचेज ऑफ सम क्लोथ्स ऑल्सो। यहाँ पे काफी रिटेलर्स है सूरत में, एमफोर है, दे आर ऑल्सो गिविंग, बजाज फाइनेंस उनको भी लोन दे रहा है, बजाज फाइनेंस गिविंग लोन टू एवरीवन। Sudhanshu, I would like to add. I would like to add प्लीज। whatever you said. जो सुधांशु बात कर रहा था कि ट्रेड्स करके जो है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट का खुद का प्लेटफॉर्म है, और गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड अबाउ सर्टेन लिमिट ऑफ टर्नओवर हैज टू मैंडेटरीली इन्वॉल्व देयर सप्लायर्स टू गेट देयर इनवॉइसेस डिस्काउंटेड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आज ही जैसा सुधांशु बोल रहा था कि प्राइवेट कंपनीज जो सप्लाई चेन के अंदर है अल्टीमेटली जो 18% का ब्याज देना चाहते हैं और बैंक से 8% का ब्याज उठाना चाहते हैं अगर उनकी वर्किंग कैपिटल भी यूज हो चुकी है, सो दे हैव टू गो टू द सप्लाई चेन फाइनेंस। एंड हमने 2 हफ्ते पहले सीएफओ का प्रोग्राम किया था, उसमें देयर वर सम ग्लोबल बैंकर्स विद अस, दे आल्सो इन्फॉर्म दैट द क्रेडिट इंश्योरेंस, डिजिटल लेंडिंग, as rightly said by Sudhanshu, के that all depends on the data. Ultimately the bank finance is now मतलब आपकी गुडविल और फाइनेंसेस के ऊपर तो है ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट every digital lending platform at least checks almost 50 to 70 data points, either through Facebook, either through WhatsApp, either through your digital footprints. डिजिटल फुटप्रिंट्स के उनके 50 to 70 डेटा पॉइंट्स है जहां से वो डेटा कलेक्ट के देन दे फंड यू। ट्रेड करके जो ऐप है that has started peer to peer lending at 12% of rate of interest, क्रेडिबल करके एक स्टार्टअप है, उन्होंने लोन 100 करोड़ का डिसबर्स किया है, बट वैल्यूएशन दे गेट एट 1000 करोड़ बिकॉज द काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे हैव डेवलप्ड। अब उनको कितना भी पैसा दे दो वो उतना फंड कर सकते हैं। सो उनके वो क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो चुके हैं इसके अंदर, इसीलिए इन सबको इतना वैल्यूएशन और वो सारी चीज मिल रही है। एंड आई थिंक ये we should not just be limiting ourselves to the physical bank finance, because as a banker we understand the banking norms and conditions. मुझे तो लगता है अगर हम सब मिल जावे लाइक माइंडेड पीपल तो हम खुद का एक एनबीएफसी खोल सकते हैं, खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं। सो या डेफिनेटली, जैसे अब बताया, जैसे आई वाज आल्सो सर्चिंग ये जो ट्रेड वाला जो प्लेटफॉर्म है सप्लाई चेन में, कि आई वाज आल्सो वंडरिंग कि उनको हाउ मतलब उनको सिक्योरिटी कैसे मिलता है, कि फॉर एग्जांपल अगर वो लैंड कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया, फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंगल पार्टी को डिस्काउंट करना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कस्टमर आता है एंड वांट्स मुझे सप्लाई चेन फैसिलिटी दो, तो मेरे को उसके लिए आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, कि मेरे को इसको भी मतलब इसके डॉक्यूमेंट भी चाहिए जिसको हम सप्लाई चेन दे रहे हैं, और मुझे जिसके लिए सप्लाई चेन करना है मुझे उसके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बेसिकली ट्रेड ने क्या किया बहुत, और सबसे अच्छी चीज ये ट्रेड का जो मतलब रिस्क है दैट इज वेरी स्कैटर्ड। मुझे फॉर एज ए बैंकर हमको एक लाइन में शायद 5 करोड़ लगाना पड़े, उनको शायद, और एंड दे आर लुकिंग एट द मास इन्वेस्टर जो शायद 5-5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर कंबाइंडली इन्वेस्टिंग 5 करोड़, राइट। तो उनको बहुत वेराइटी। दूसरा क्या है कि सब कुछ डेटा पे है। और मैंने लाइव एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल अगर आप कार परचेज करो आज की तारीख में, आपको तुरंत आई थिंक नेक्स्ट ईयर से आपको आप कार की आप 5 या 10 ईएमआई भरो, हिल कॉल यू कि हम लोग आपको 5 लाख का लोन दे रहे हैं, दे वर्क एज ए मीडिएटर। आप कटारिया से लो या कोई से भी कार लो, आपको हिल कॉल यू आफ्टर ओनली 12 ईएमआई, आपने कार का बराबर पे किया, हिल कॉल यू फॉर फर्दर 5 कि ना 5 लाख का लोन ले लो दिस वे। ऑल्सो आई हैव सीन सम अमेजिंग प्रोसेसर कि हम जैसे आई जस्ट वेंट थ्रू सम डेटा
कि अगर आप जब क्लब मेंबरशिप लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने महिंद्रा का क्लब मेंबरशिप लिया, राइट, तो उसको ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो कंपनियां हैं ये उठाती है और ये फ्लैट आपको देखिए इस नॉर्म पे देती है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि जो बंदा क्लब मेंबरशिप का मेंबरशिप ले सकता है क्लब महिंद्रा का फॉर सपोजिंग फॉर 8 लाख 10 लाख, वो डेफिनेटली हमका 5 लाख का लोन हमारा रिपे कर सकता है, बिकॉज बेसिकली ही विल बी अ रिपीटेड क्लाइंट। सो इस तरह का बेसिकली इट्स लाइक डिजिटल फंडिंग जो आपको दिया जा रहा है दैट इज सोली ऑन योर डेटा एंड नॉट यू, एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस क्राइटेरिया, राइट। और इसके लिए सबसे ज्यादा काम आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे एक्चुअली क्या है कि पोस्ट जीएसटी और डीमॉन सिस्टम में इतना पैसा आ गया है कि आज पहले जो पैसा कच्चे में था वो सारा पैसा पक्के में आज आ चुका है, बैंक अकाउंट में पड़ा है। नाउ पीपल वांट टू इन्वेस्ट, और 12-13% लुक्स लुक्रेटिव एज कंपेयर इन लेंडिंग एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट, क्योंकि दे हैव वहाँ पे अपने अदर रिस्क है। सो नो डिजिटल मार्केट is growing this way because okay, so now we'll be coming at what are the opportunities for charters, as we already say कि हम लोग शायद सब मिलके एनबीएफसी खोले, शायद एनबीएफसी तो अभी आई एम नॉट श्योर कि खोल पाए, लेकिन चार्टर्स अपने लेवल पे यू कैन फंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ, अगर कोई चार्टर के पास कोई इन्वेस्टर है, दे कैन पुट अ डील टू द इन्वेस्टर्स कि आप इन्वेस्ट करो हमारे प्लेटफॉर्म में। आपको ये सब ये करने के लिए आपको एनबीएफसी का लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है अपफ्रंट, अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल यू कैन लेंड टू कॉर्पोरेट्स, ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ यहाँ की जो लोकल कॉर्पोरेट है, फॉर एग्जांपल सूरत में कोई अगर कंपनी है जो सिर्फ सूरत में इज इनटू टेक्सटाइल, राइट, आप उनके एम्प्लॉयज को यू कैन से कि भाई मैं आपके एम्प्लॉयज को अगर जरूरत होगा तो आई फंड, और उसके पास बेसिकली इन्वेस्टर है, आई फंडेड 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओनली थिंग इज कि जो एम्प्लॉयर है कॉर्पोरेट जो कंपनी, ही हैव टू इंश्योर कि ये मेरा एम्प्लॉय मेरे साथ 5 साल से है और ये आज की तारीख में नोटिस पीरियड पे नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 1 साल में नेक्स्ट छोड़ने वाला नहीं है, तो हम उसको लेंडिंग दे सकते हैं। सो एवरीथिंग हैज टू बी परचेज बाय मनी, एंड हर चीज के लिए आप ईएमआई बांध के दे सकते हो। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, इंडिया इज अ मार्केट ऑफ मासेस। आप जो दोगे वो देखिए, आप 10,000 की लोन देंगे तो 10,000 लेने वाले भी है, आप 1,000 करोड़ की दोगे तो 1,000 करोड़ लेने वाले भी है, राइट। दूसरा है कि कंप्लायंस एंगल। आई थिंक आज की तारीख में ये जो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं इनका कंप्लायंस, आई थिंक चार्टर्स कैन वेरी वेल गेट इनटू दिस। आई थिंक उनका कंप्लायंस देखने के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक रूल बुक फॉर द कंप्लायंस। एनबीएफसी का रूल बुक है कि एनबीएफसी कंप्लायंस किस तरह से होता है। डिजिटल लेंडिंग का कंप्लायंस यू कैन इंश्योर। दूसरा, चार्टर्स कैन गेट इनटू स्ट्रेटेजी टीम। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल्स मैंने दिए कि हम किस तरह से डेटा सोर्स कर सकते हैं। दैट डेटा सोर्सिंग में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन प्ले अ मेजर रोल, कि हमें ये सोचना है कि हम कहाँ से डेटा गैदर कर सकते हैं और किस डेटा पे हम लोग कितना फंड कर सकते हैं। यू कैन जस्ट टेक अ सिंगल डेटा एंड उस पर हम फंडिंग कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने चार्टर्स का बताया, आप चार्टर्स को फ्लैट 5 लाख रुपए देना है तो नॉट एन इशू, डेफिनेटली चार्टर्स वोंट derogate his CIBIL just for a 5 lakh rupees. So there are a lot of opportunities for charters getting into this, right? So Abhishek, coming to the next point, जैसे अभी इसके बाद हम बात कर रहे थे कि चार्टर्स के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री में कहाँ स्कोप है। जैसे डिजिटल लर्निंग का तो आपने बात किया। नाउ आई जस्ट गिव अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ कि जो मुझे लगता है कि चार्टर्स को बैंकिंग इंडस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट मैनेजर, तो सबको पता है जैसे आदमी सीए बनता है उसको लगता है मैं क्रेडिट मैनेजर बन जाऊँ, राइट। अपार्ट फ्रॉम सीए भी बहुत स्कोप है, और मैंने नए चार्टर से मैंने काफी इंटरेक्शन किया है। एवरीबडी वांट्स टू कम इनटू क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट दो क्रेडिट अच्छा है कि यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर इन द बैंक दैट दे शुड सी पॉजिटिवली। व्हेन आई डिस्कस विद सम चार्टर ने ऐसा ही आस्क देम कि चलो क्रेडिट में नहीं है, आपको सेल्स में चलेगा। सो दे आर लाइक, उनके दिमाग में आता है कि नहीं मैं सेल्स नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज आई एम अ चार्टर में सेल्स नहीं करूंगा। तो जस्ट इसमें बहुत स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। सेल्स जो है, अब जो आज के मार्केट जो है बैंकिंग में, इसमें सेल्स मोर ऑफ स्ट्रेटेजी बन चुका है रेदर देन, ऐसा नहीं है कि आपको डोर टू डोर कॉलिंग करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इनटू सेल्स कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल, राइट। जो स्किल्स, जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होंगे, जस्ट बिकॉज उसने पढ़ाई करके वो स्किल्स डेवलप किए होंगे, लर्निंग एबिलिटीज जो शायद उसके पास होगी वो शायद नॉर्मल के पास नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल। तो चार्टर्स को शुड उनको सेल्स में भी चार्टर्स कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। दे कैन गैदर देयर स्ट्रेटेजी कि मैं इस तरीके से फंडिंग कर सकता हूँ। they have a good communication skills, they have great convincing skills. Now banking has all end up to convincing skills, जिसका सबसे ज्यादा convincing power है ना,
he will win in the banking. Banking has been a very competitive market. अभी आज की तारीख में I think before around 3 to 4 years I used to see कि है ना 12%, 11%, 10% के आसपास there was rates. Now banking has become so competitive. The market has no, there is a gap of around 5 से 10 पैसा का. HDFC will be funding you at 7, ICICI will be funding you at 6.95 and Kotak will be funding you at 7.05. So इसमें जीता हुआ है जिसका convincing skill है. So chartered should definitely enter into sales too, right? To so they can use their strategy, they can use their convincing power, they can use their intelligence to convert clients, right? So I think apart from orthodox banking, a chartered accountant can play a vital role in doing a strategic banking, so they should definitely enter into sales too, right? Apart from this, जो एक है कि investment banking, I think investment banking is a ऐसा है कि I think there are no major people actually in Surat investment banking का scope नहीं है, right? In Mumbai there are a lot of companies who are into investment banking and वहाँ पे अगर आप देखोगे तो majority of the people are from IIMs, right? Investment banking है और जो डेट सिंडिकेशन डिपार्टमेंट है इसमें आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ फ्रॉम IIMs. द रीजन व्हाई एक तो वो शायद कैंपस में नहीं आते हैं, but they are very keen to hire charters. I've seen chartered doing excelling their job in investment banking also, right? But problem is कि जो कैंपस है हमारा कैंपस हमको आई थिंक शायद बहुत है ना शॉर्ट चीजें दिखाता है. बैंक्स है, ट्रेजरी है और अकाउंट्स एंड फिनेंस है, ये सब बहुत बेसिक चीज दिखाता है, इसलिए हमको शायद ऐसा था कि वहीं पे शायद स्कोप होगा. सो आई थिंक चार्टर्ड शुड आल्सो एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चार्टर्स का रोल एक्सप्लेन कर सकते हैं. बेसिकली ऐसा है कि जो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ और मुझे फंड चाहिए, राइट? तो इट कैन बी एनी अमाउंट, इट कैन बी 10,000 crores, कैन बी 20,000 crores. चार्टर्ड इज द वन. ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप ये एनालाइज करके बता सकते हैं कि मैं उसको अच्छा पैसा कहाँ दिला सकता हूँ. मैं उसको आईपीओ में दिला सकता हूँ, मैं उसको बैंक से फंडिंग दिला सकता हूँ, मैं उसको प्राइवेट इन्वेस्टर दिला सकता हूँ. बेसिकली देयर आर वेराइड नंबर ऑफ ऑप्शंस, राइट? वो गाइडेंस जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्ले अ वेरी वाइटल रोल in strategy, in analytics. So I think they should, new charters should explore the field of investment banking and debt syndication, right? Then already I talked about sales. Sales can just very specific trade managers. Charters should get into portfolio management. Portfolio management, actually banking का portfolio management is an art. You have to you have to change with the time. For example, मैं आपको बताऊँ आज की तारीख में the market is so competitive ना. Market is so competitive and RBI has already told that there will be no foreclosure charges in MSME, and so the market has been very critical. 5 पैसे के लिए कस्टमर इधर उधर हो जाता है, राइट? वो आई थिंक जितने भी बैंकर्स है वो अच्छे से समझ जाएंगे 5-10% के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन प्ले वेरी वाइटल रोल इन मैनेजिंग द पोर्टफोलियो. अगर कोई बैंक के पास 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसको इंटैक्ट रखना, इट इज एक्चुअली एन आर्ट एंड ट्रेड मैनेजर कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. मतलब अपार्ट फ्रॉम हमारा एजुकेशन जो हम सीख रहे हैं या फिर यहाँ पे जो भी हम इंटेलेक्चुअल चीजें सीख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो लर्न हमारा कि कन्विंसिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ. अगर आप आगे बिजनेस में करते हो तो यू कैन लर्न कन्विंसिंग स्किल्स, यू कैन लर्न रिलेशनशिप बिल्डिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? किताबें तो सब पढ़ लेते हैं लेकिन रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड ऑल्सो वी कैन इन बैंकिंग देयर इज अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड डील. ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मैं बहुत एक छोटा सा बेस बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट खुला रहा है या सेविंग्स अकाउंट खुला रहा है, राइट? तो हम उसको सेविंग्स में 3% शायद रिटर्न देंगे, करंट अकाउंट में हम उसको शायद कुछ भी नहीं देते. तो मेरा जो ओवरऑल कॉस्टिंग है ये इंटरेस्ट के बाद मेरा एम्प्लॉय के साथ जो कॉस्टिंग है दैट इज अराउंड 5 to 6%, राइट? और मैं जो लैंडिंग कर रहा हूँ दैट कैन बी एट 7%, 8%. तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज द वन जिसको हमेशा अपडेट रखना है कि मैं कॉस्टिंग कैसे कम कर रहा हूँ और मैं किस रेट पे, जैसे एसेट टीम को मैं अलग दे रहा हूँ, मैं होम लोन को अलग दे रहा हूँ. इस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन प्ले देयर वाइटल रोल इन दिस. और लास्ट एक है जो है स्टॉक मार्केट एनालिसिस, राइट? इसके अंदर आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करंटली यार खुद की प्रैक्टिस से डेफिनेटली काफी लोग कर रहे हैं, राइट? पर बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट में चार्टर्स आर ना के बराबर है, बेसिकली वेरी मिनिमल. पर आई थिंक इसमें जो स्कोप है वो शायद कहीं नहीं है. तो चार्टर्ड अकाउंट शुड डेफिनेटली टेक द स्कोप. शायद थोड़ा ऐसा हो सकता है चार्ट बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, इट कैन बी, लेकिन दो इट कैन बी अ लर्निंग पार्ट, राइट? तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस कैन गिव यू मल्टीपल फोल्ड ग्रोथ. आप एक बार अगर इफ यू गेट द स्किल्स ना, जिसने स्टॉक मार्केट की स्किल ले ली उसको और कुछ नहीं चाहिए, राइट? सो चार्टर्ड अकाउंट शुड एक्सप्लोर दैट आल्सो.
right? So I've given some varied departments that chartered account can explore in the banking, right? I hope everybody has. So any further questions on this session? Thank you, Sudhanshu sir, Yeah. for delivering so much of knowledge. I would now Yeah, like Chirag sir to please kindly share your words. Am I audible? Yes, Now you're audible. Please. Sudhanshu has almost covered all the points regarding scope of CA in banking industry and in-house wise. I would like to add that CA can also play a role in vendors as a vendor for various field investigation agencies. Like we have hiring field investigation agencies. They can also have वो फील्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी हम एज अ चार्टर प्रैक्टिस जो करते हैं वो बैंक की हेल्प कर सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी एजेंसीज, जैसे पीडी एजेंसीज हुई, फील्ड इन्वेस्टिगेशन हुई। ऑल्सो सीएसआर, मेरे वहाँ सीएसबी एजेंसीज है जो कलेक्शन में भी हेल्प करते हैं एज अ थर्ड पार्टी वेंडर्स। सो सीएस हैज अ ग्रेट रोल। जनरली हम देखते हैं तो सीए अंडरराइटिंग में ही जाते हैं, मतलब ऐसा ही सोच के जाते हैं कि मैं जब सीए बना तो मेरा भी ऐसा ही था कि सीए बना तो मैं अंडरराइटर ही बनूंगा, क्रेडिट मैनेजर ही बनूंगा। पर यहाँ आने के बाद व्हेन यू सिलेक्ट योर जॉब, फर्स्ट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सीएस। व्हेन दे एंटर इनटू बैंकिंग, इट इज लाइक यू आर सिलेक्टिंग योर कैरियर एज अ होल। अगर आप एक बार बैंकिंग इंडस्ट्री में जाते हो तो फिर कभी मतलब वापस मुड़ के आना वो बहुत डिफिकल्ट रह जाता है। तो व्हेन यू सिलेक्ट योर फर्स्ट जॉब, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप किस फील्ड में जा रहे हो। फर्स्ट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर, जैसे मेरा फर्स्ट जॉब 2014 में आईसीआईसीआई बैंक एज ए ब्रांच क्रेडिट मैनेजर था, तो आई हैड सेलेक्टेड दिस जॉब अराउंड 7 years आई हैव कंप्लीटेड, एंड ये यही रहा है कि मेरा अब मैं मुझे कुछ और करने का भी मतलब वो स्कोप नहीं बचता। तो व्हेन यू सिलेक्ट फर्स्ट जॉब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज अ कैरियर सिलेक्ट करो। सो बैंकिंग इंडस्ट्री इज अ गुड कैरियर फॉर ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इट कैन कैटर ऑल द सीएस हु हैव पास्ड आउट, और वो हम कर सकते हैं। मतलब हमारे ऐसा अंडरराइटिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट सीएस आर प्रेफर्ड, सीएस प्रेफर्ड होते हैं कि एज अ अंडरराइटर सीए ही ले। तो ये एक बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें अंडरराइटिंग का जॉब मिलता है। पर अंडरराइटिंग के अलावा रिलेशनशिप मैनेजर है, जैसा सुधांशु ने बोला कि वी कैन डू सेल्स बेटर देन क्रेडिट। अगर मैं एग्जांपल दूं मेरी बैंक का, सो मेरे यहाँ पे एक कोटक का ही क्रेडिट मैनेजर था जो यहाँ पे रीजनल हेड सेल्स करके मतलब यहाँ पे अपॉइंट हुआ है, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। कि सीएस कैन आल्सो डू सेल्स पार्ट ऑल्सो। अंडरराइटिंग ही ऐसा अकेला जॉब नहीं है। जनरली सीएस एंड अंडरराइटिंग क्रेडिट मैनेजर वो सिनोनिम की तरह यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। सीएस कैन डू बेटर सेल्स देन एक्चुअल मतलब कोई नॉर्मल इंसान, क्योंकि सीए के पास जब सोर्सिंग के लिए फाइल आती है, कुछ भी आती है, तो ही एनालाइजेस एट दैट पॉइंट, दैट मोमेंट ओनली। सो ये एक रिलेशनशिप मैनेजर की बात हुई। फिर मैंने वेरियस एजेंसीज की बात कर रहा था कि जैसे फील्ड इन्वेस्टिगेशन हुई बैंकिंग के साथ, जैसे सीएज इन प्रैक्टिस है वो भी आराम से मतलब बैंकिंग के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे फील्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ, पीडी एजेंसीज हुई, कलेक्शन एजेंसीज हुई, इससे भी हम रूल बहुत वाइड है कि वो सीएज भले प्रैक्टिस में हो पर बैंकिंग के साथ ऐसे जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन बैंकिंग में एज एन एम्प्लॉयमेंट ही आप सिलेक्ट करो। बैंकिंग इंडस्ट्रीज अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज विल हेल्प अ लॉट कि ऐसे आप जैसे एजेंसीज थर्ड पार्टी वेंडर्स की तरह काम कर सकते हो, वैसे भी सर्टिफिकेशन के है, अलग अलग चीजें हैं, वेंडर्स है जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं। तो सीएस का वाइड रोल है, अगर वो प्रैक्टिस में है तो बहुत वाइड रोल है कि बैंकिंग को ऐसे एज अ थर्ड पार्टी एजेंसीज भी कोई भी स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी लिए कि वो कर सकती है। मैं डिजिटल लैंडिंग के बारे में बात करूंगा थोड़ी बहुत, वैसे सुधांशु ने बहुत कवर कर लिया है। आई हैव वेरी लेस टू से। अगर देखने जाए तो डिजिटल लैंडिंग इज लो कॉस्ट एंड हाई वॉल्यूम स्केल। कि वो एकदम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट होती है ओवरहेड कॉस्ट, इट सेव्स बैंक का कॉस्ट 30 to 40% सेव होता है उससे। तो ये मेजर पार्ट है कि डिजिटल लैंडिंग की तरफ आज क्यों इतना बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा भी ऐसा हो गया कि
ये जो रिटेल लोन्स है, रिटेल एसेट्स है, इट्स मूविंग टू डिजिटल। मतलब ऐसा हो गया कि अब कस्टमर्स को कोई आने की जाने की जरूरत नहीं, कोई नो पेपरलेस, नथिंग डूइंग। ऐसी एजेंसीज है हमारे साथ काम कर रही है कि कस्टमर को खाली विद द हेल्प ऑफ वीडियो केवाईसी घर बैठे बैठे सब कुछ उनके रिटर्न्स, आईटीआर वगैरह सब हमारे पास पहुंच जाता है। जस्ट विथ एन ओटीपी एंड वीडियो केवाईसी सब डिटेल्स उनकी आ जाती है। सो डिजिटली वैसे देखने जाए तो अभी बैंक्स भी अपने प्लेटफॉर्म्स खड़े कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स खड़े कर लिए कि डिजिटल लैंडिंग में वो आए, क्योंकि डिजिटल लैंडिंग इज वेरी प्रॉफिटेबल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30 to 40% वो कट करता है, और उसमें एक तो टाइम सेविंग होती है एंड दे चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट एक्सेसिव रेट्स। अभी आपको पता होगा कि आरबीआई ने एक वार्न किया था कि सब अनऑथराइज्ड जितने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है उनके एक तो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशंस नहीं होते थे, तो उन सबको वार्न किया है कि अगर आपको ऐसा करना है तो दे हैव बैंड मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि सैंक्शन लेटर्स में कंडीशंस मेंशन नहीं होती है, तो होती है तो बहुत छोटे अक्षरों में होती है, या तो उनके जो रिकवरी मेथड्स होते हैं वो बहुत खराब तरीके से होते हैं। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की लेंडिंग की बात करो तो उनके रिकवरी मेथड्स एज कम्पेयर टू बैंक इट इज वेरी टफ, कि अगर पेमेंट नहीं आ रही है तो रिकवरी टर्म्स बहुत हाई होते हैं। तभी आरबीआई ने सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वो भी वार्न किया था इस बारे में कि दे हैव टू इशू सैंक्शन लेटर्स बिफोर एनी डिसबर्समेंट। सब इतना कंडीशंस डाला था रिसेंटली हुई पे बात। डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो एज सुधांशु शेड के वो आपको देख के फंड नहीं कर रहा है। दे आर ओनली सीइंग योर नंबर, दे ओनली सीइंग योर रिकॉर्ड कि आप कैसे आपका पेमेंट कैसे करो, पेमेंट आपके पेमेंट टर्म्स क्या है, पेमेंट पैटर्न क्या है, व्हाट आर योर एक्सपेंसिव स्टेटस, वो सब देख के ही फंडिंग होता है। तो आपका बैंकिंग है ना, आपका बहुत जरूरी होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। हाउ मच बैलेंसेस यू आर मेंटेनिंग इन योर अकाउंट, वो बहुत जरूरी पड़ता है। उससे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन वगैरह, बिजनेस लोन सब ऑफर उसी से आते हैं कि दे आर यूजिंग योर बैंकिंग एज अ होल। अब कहाँ आपके क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या आप स्पेंडिंग कर रहे हो, कहाँ से आपको इनकम जनरेट हो रही है, मंथली कितना इनकम जनरेट हो रही है। मैं यहाँ पे बोलूँ तो एज अ क्रेडिट मैनेजर को ये रिप्लेस कर देता है। हम फ्यूचर देखते हैं कि अब सीएज इन रिटेल एसेट्स करेगा, सब अंडरराइट करेगा, पर फ्यूचर यही है कि है ना, सीएज को भी ये रिप्लेस कर देगा डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग मतलब इतना डिजिटली हो जाएगा कि इतना उसमें टर्म्स, उसमें पैटर्न इतने क्लियर होंगे कि वो सब इट कैन रिप्लेस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फ्यूचर में ऐसा आएगा कि देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट इन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट फॉर रिटेल एसेट्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, पर्सनल लोन्स। क्रेडिट मैनेजर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब आपकी पैटर्न को इतना मॉनिटरिंग करते हैं, आपके एक्सपेंसेस को, आपकी इनकम को इतना इतना मॉनिटरिंग होता है कि इतने प्लेटफॉर्म स्ट्रांग बनाए हुए हैं सभी बैंक्स ने कि वो दे कैन फंड इजीली। पर इसमें दिक्कत भी आती है, ऐसा नहीं है। दिक्कत ये आती है कि इट इज हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हाई कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है एज कम्पेयर टू अगर लोकली आप बैंक से विजिट करके कोई फंडिंग लो, या क्योंकि वहाँ पे आपको जानते हैं, आपको पेपर्स को जानते हैं, मतलब आपको बिजनेस को जानते हैं, जबकि वहाँ पे एक क्लिक पे हो रहा है सब कुछ। वहाँ पे ह्यूमन टच आता है, यहाँ पे ह्यूमन टच नहीं आता। डिजिटल लैंडिंग में ह्यूमन टच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके बस स्कोर्स देखते हैं, सिबिल स्कोर्स देखते हैं। देयर आर मेनी क्रेडिट एजेंसीज, क्रेडिट ब्यूरोज कि आपके स्कोर्स जनरेट करते हैं। इक्विफैक्स है, सिबिल है, तो वहाँ से आपके स्कोर्स जनरेट होते हैं। रिसेंट बोरोइंग देखते हैं कि फाइनेंशियली कितने बोरोइंग आपके है, सब देख के आपका लेवरेज चेक होता है कि हाउ मच द पर्सन इज लेवरेज, ओवर लेवरेज तो नहीं है। उसी बेसिस पे वो कैलकुलेट करके आपको एक एक्स अमाउंट ऑफर करते हैं। सभी का फोकस अभी यही है कि डिजिटल लैंडिंग पे जाए। उसमें ये भी है कि रिस्क बेस्ड पॉलिसी डिजिटल लैंडिंग लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर 7 से 750 होता है तो यू विल चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट। 750 से अब हुआ तो हायर कम होगा, 800 से अब होगा तो और कम होगा। तो इस पे अगर देखने जाए तो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग यूज होता है रादर देन योर प्रोफाइल, आप क्या करते हो, लोन अमाउंट, उससे अच्छा रिस्क बेस्ड प्राइसिंग यूज होता है। कस्टमाइजेशन ऑफ लोन मिलता है कि कैसे डिजिटल लेंडिंग में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वर्किंग कैपिटल है, आपको क्रेडिट कार्ड है, आपको पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, सब मतलब आपको जो जो रिक्वायरमेंट है
सब आपको डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है। एंड यस एज सेड के गवर्नमेंट मतलब इट इज एस्टिमेटेड कि ये मार्केट है ना 7 लाख करोड़ बाय 2023 तक जाएगा। 6-7 लाख करोड़ मतलब ये बहुत ज्यादा है। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। मेजरली इट वाज कवर्ड बाय सुधांशु, सो आई वुड हैंड इट ओवर टू अभिषेक मित्तल। Am I audible? I'm sure. थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है। Am I audible, Opening. Surya? Yes, you are audible, but थोड़ा glitch आ रहा है सर साउंड में। अभिषेक नहीं आ रहा है आपका आवाज। अभिषेक भाई ग्लिच आ रहा है थोड़ा सा। नहीं आ रहा है अभिषेक, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। Regarding the kind of profile नहीं आ रहा। Just a moment, I'll connect with Abhishek sir personally. Abhishek sir, you're not audible. Hello. इंटरनेट का प्रॉब्लम है, एक मिनट। Unmute, Abhishek sir, unmute. Yes. I Yes, would request yes. all the members to remain in the group and ask me as many questions as possible to our speakers, because ऐसे dynamic speakers हमें मिलेंगे नहीं बाद में वापस और जवाब देने का time नहीं है. So if any of the member have any kind of question regarding the opportunities or the kind of profile they should be choosing when they enter into the banking industries, so I do not we do not want it to be a monologue session where both of our speakers are talking. We want it to be more participative session. So Abhishek, I would request if you have any kind of question or any of the member or participant have any kind of question, they can ask to our speakers, because I have got this opportunity. Of course, I would ask to both of our speakers the questions which I have in my mind. You can put in the chat box also, any of the member. Sudhanshu, as soon as the question comes, I have this very specific question with you that we have seen in the last couple of years that most of the CAs have started entering into relationship manager also. And after this goes down the line, when they see that they have developed enough contacts, they start practicing also. Correct. So, but I think that is also one of the narrow vision of a CA, because beyond a certain point of time, project finance is a very competitive field. So apart from the project finance, if any of the CA wants to exit from the banking industries, what are the other couple of opportunities which he has in that finance field? Can you throw some light on that?
हाँ, आई थिंक बैंकर्स कैन जैसे आपने बताया रिलेशनशिप के बाद दे आर एंटरिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फील्ड में बढ़ रहे हैं वो लोग, राइट? सो दे कैन मोर ऑफ गेट इनटू कंसल्टेंसी। मेरे हिसाब से दे कैन वेरी वेल गेट इनटू एमआईएस कंसल्टेंसी। फॉर एग्जांपल इफ आई शेयर व्हाट इज एमआईएस कंसल्टेंसी, फॉर एग्जांपल अगर एक कोई डाइंग मिल है, राइट? डाइंग मिल में अगर जो डाइंग मिल की जो बैकग्राउंड है दैट इज द डाइंग मास्टर या उसका जो मैनेजर होगा वो, राइट? तो ओनर्स क्या देखते हैं, ओनर्स गेट देयर नो अबाउट देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? कि बैलेंस शीट जब बनाने बैठते हैं देन ही रियलाइजेस कि मुझे तो मैंने मतलब 20 करोड़ का लैंड लेके रखा है और 5 करोड़ का वर्किंग पे लगाया, 25 करोड़ साला मैंने कमाया सिर्फ 1 करोड़। तब उसको टेंशन आता है, राइट? एंड देन रियलाइजेस क्या गड़बड़ है, तो वो डाइंग मास्टर पे चिल्लाता है, ये करता है वो करता है। तो चार्टिंग गेट इनटू एमआईएस। इसमें क्या होता है कि जब बड़े कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोल है, कलर है, देयर वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट? आप उसका एवरी मंथ यू कैन डू अ वेरिएंस एनालिसिस, राइट? फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट मंथ में जो है आई डिड अ प्रोडक्शन ऑफ अराउंड फॉर एग्जांपल 10,000 मीटर्स, और उसमें मेरा कलर केमिकल फॉर एग्जांपल लग रहा है 1 लाख रुपए का, एंड मेरा कोल लग रहा है 5 लाख रुपए का। एंड सडन इफ यू ये हमने बनाया प्रोजेक्शन की 1 लाख का केमिकल बनेगा और 5 लाख का कोल बनेगा, राइट? एंड फिर नेक्स्ट मंथ हम जाते हैं तो वी सी कि है ना, ये एक्चुअल ऐसा फिगर आया मेरा कि मेरा कोल हो गया 10 लाख का और केमिकल हो गया 2 लाख का। नाउ नो ओनर वहीं पे वो कैच कर सकता है कि फॉर एग्जांपल कोल है, कोल में भी सडन प्राइस हाइक हुआ तो देखिए अंडरस्टैंड कि भाई कोल डेफिनेटली बढ़ना था क्योंकि कोल में प्राइस हाइक आया है, चाइना में जो हाई कोल का शॉर्टेज है। व्हाट अबाउट कलर केमिकल? तो True. इट कैन बी द थिंग कि मैनेजर ने अपना कमीशन चार्ज करना चालू कर दिया हो, राइट? क्योंकि जो ओनर है ही कैन नॉट गेट इनटू डिटेल्स एवरी डे, राइट? वो जो आपका पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि प्राइस वेरिएंस एनालिसिस और क्वांटिटी वेरिएंस एनालिसिस निकाला जाता है। एक मेरे भी माइंड में आ रहा था कि क्रेडिट इंश्योरेंस इज समथिंग व्हिच पीपल कैन गेट इनटू, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी ये एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है which many of the bankers have started offering. I suppose some of the private banks have started offering credit insurance at 1 to 3% of the total book debts which they are having. So this is also one of the promising field. Chirag bhai, I have a question for you. Since you handle a lot of team members around you, sir, how difficult it is to move in a hierarchy within the banking industry? How you can progress yourself as a CA in the banking industry itself? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा point raise किया कि you have chosen this as a career, you have not chosen this as a job, you have chosen this as one of the area of your practice. So I think you would be better equipped to answer कि मुझे अगर banking career में अपने आप को grow करना है, so what should be the qualities or technical or psychological or personality wise, what should be the quality as a banker one should have? Chirag bhai, are you there? Sudhanshu, if you can answer, I think Chirag bhai is डेफिनेटली मतलब मैं इसको एक लाइन में आई कैन समराइज कि जिस हिसाब से बैंक जो है आने वाले टाइम में जो कंपटीशन आया है बैंक में लास्ट 10 इयर्स में, आई थिंक क्रेडिट मैनेजर शुड नाउ थिंक लाइक बिजनेसमैन। कि हम अब ऐसा बैंकिंग में ये स्ट्रक्चर आ चुका है कि हम सेल्स क्रेडिट नहीं हो सकते, हम सबको एक विजन चाहिए कि हमको बिजनेस करना है, राइट? सो क्रेडिट मैनेजर फर्स्ट ऑफ ऑल शुड थिंक एज अ बिजनेसमैन कि मैं बैंक चला रहा हूँ एंड हाउ कैन आई अर्न फ्रॉम दिस बैंक, जो मुझे पैसा मिलता है मैं उसको कैसे कमा सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि ना हम सेल्स से, मेरा जो जॉब रोल से हट के हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल से मैंने बताया कि वी नीड टू थिंक लाइक अ सेल्स गाय कि मुझे कैसे कमाना है, rather than कि मेरे को मेरा जॉब कैसे जस्टिफाई करना है। This way we can if we can think as a owner, we can easily grow in the hierarchy. There is definitely not an issue. So you say you what you wanted to convey is that the mindset of a person is very much important rather than Yeah, his role or profile. Definitely. अगर आपको for example there is one more question from Harish Tibrewal. He's saying his very specific question is, just hold for a second. Yeah. If any fresher CA wants to join in the bank in the credit manager post, then how he can join? Because every credit manager wants past experience, and no one is offering the job of a credit manager to a fresher. So how can he join in the first place? ओके, डेफिनेटली पहले मैं जस्ट वांटेड टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया हरीश कि किसी को क्रेडिट मेजर में स्पेसिफिक ज्वाइन होना है, राइट?
the thing is ना कि market इतना competitive है कि there are a lot of charters. For example, I've been hiring from last 2 years. I've taken more than 30 to 40 interviews, right? अब the thing is कि आज मुझे hire करना है, तो for example, I need to, I need a person who can think as a businessman, right? So experienced guy adds to the organization and fresher doesn't. So basically, if I would guide him कि go check for the field. अगर आपको बैंकिंग में एसेट साइड में आना है तो इट डजंट मैटर जो कमिंग इन द सेल साइड और जो कमिंग इन द क्रेडिट साइड, राइट? आप सेल से भी क्रेडिट में जा सकते हो. और दूसरी चीज, अगर आपको एज अ फ्रेशर एंटर होना है देन यू शुड लुक फॉर रिटेल प्रोडक्ट्स. रिटेल प्रोडक्ट्स में शायद एक्सपर्टीज कम चाहिए rather than working capital. Like currently I'm looking at a working capital. No, I would definitely prefer experienced guy in my team, and there's a reason for that, because I want someone to think like a businessman, and that comes from the experience, right? So basically I would suggest you to start with the retail products like home loan, lab, and basically home loan and business loan. You can start with this and then you can move to other organization. और ऐसा नहीं है कि freshers hire नहीं होते. I think currently ICICI Bank is hiring freshers. Surya Abhishek was also fresher and he was hired in ICICI Bank, right? And there are a lot more people in this Zoom call that are freshers and who have been hired, right? So what Harish you can do is you can put in the group what kind of post you are looking for. I think a lot of the bankers are with us. They will help you to put through any of the position which is available. And this group objective is the same, because as a banker हम सब एक साथ जुड़े हैं. We can share the information among ourselves regarding any kind of credit availability, credit post, product portfolio, anything of that sort. And I'm very much happy that आज हम ये program कर सके. And now I would request any other participant have any kind of question, they can share with us. I think it's the time to end this program as of now. You have been a very good audience. We have a lot of participants with us till now. And I would thank Sudhanshu, Abhishek, Surya, Ankush, Anuj, Girish Bhai, Navneet, Abhishek. I would also hand over to Abhishek to close this session, or if any of the participants want to ask any kind of question, they can open their mic and start ask the question also, or they can raise the hand in the chat box. Else, I would like to hand over to Abhishek and thank you all of the audience. And the objective of this keeping this seminar was to coordinate, to communicate with all the bankers, see to their problems and listen to their feedbacks, and organize such further programs in the coming time also. And we would of course again come up with a second series of bankers program with more good topics and with speakers like today's. And also I just wanted to add, जैसे हर्ष ने जो question पूछा, हर्ष, you can also send me a resume. अगर if I get to some opportunity, I'll definitely call you back. Okay. Okay, so thank you, Sudhanshu sir, Chirag sir, and Abhishek Mittal sir for organizing this wonderful session. And as Abhishek sir said, we will be continuing with this type of sessions, more interactive sessions, of course, so that everyone can participate and give their own contribution. And I would like Sudhanshu sir and Chirag sir to drop their number in the chat box. And I will also drop my number as well, so that if anyone is having any of the queries, we will resolve them. And Harish, please drop your resume to me as well. We'll try our best to. Okay, thank you, sir. Thank you so much for being such a wonderful audience. Thank you. Thank you, Surya. Thank you. Yeah. Thank you.